Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Himanshu Gupta and today I have the honor to speak with Dr. Bhavna Arora, who has secured rank 175 in AIIMS November 2018 and she will be joining Obs Gynae in AIIMS New Delhi. So very big congratulations Dr. Bhavna. It's a milestone that you have achieved with many others dream of. You are an inspiration for many students, from Lady Hardinge Medical College. So today we will speak about your strategies that you followed to get such a good rank. So we will begin with your internship. इंटर्नशिप प्रिपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए माइंड सेट रेडी होना चाहिए. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डे वन विद अ प्लान इन हैंड. प्लान रफली ये रहता है कि यू हैव टू फिनिश एटलीस्ट वन रीडिंग of all the subjects by July and maximum by August, not beyond. And then one more reading before AIIMS, if possible end October, and then one more reading before November along with the previous year, and then simultaneously revising the syllabus. So sir, for covering the syllabus in 6 months there can be different strategies. The one I opted was to go for 2 different TNDs at once. So because with that what happens, you get 2 targets in 1 week. Though you can do one thing, you can go for 1 TND and simultaneously prepare. See, there are some subjects which are short, does not need 7 days or 8 days. So you can spare the time for the subjects that are difficult for you. Because if microbiology was difficult for me and ENT was not difficult, and if I give 7 days to both, then it is not justified. I have to give more time to my weak subjects and less time to the subjects that I know well, and that doesn't demand that much of preparation. So you can go to 1 TND, but meanwhile cover irrespective of the TND schedule. आप उसे cover कर सकते हैं साथ साथ. बट मुझे लगा मैं ये नहीं कर पाऊंगी बिकॉज इंटर्नशिप भी थी, तो मैं दोनों कैसे मैनेज करती, तो मैंने दोनों TND को इन हैंड रखा. तो इससे क्या हुआ कि आई कुड कवर ऑलमोस्ट फर्स्ट 2 months में आई कुड कवर एटलीस्ट 8 to 10 सब्जेक्ट. 80%, 70 to 80% of almost 8 to 10 subjects, which definitely included my weak subjects. Because I had time, my posting was light. Sir, PSM posting was there in first 2 months. Basically, as much as I know in Hardinge, internship में जो schedule होता है उसमें heavy और light posting alternate करती हैं. अगर आपकी 1 महीना heavy posting है तो definitely next month light posting आएगी. इस तरीके से एक है शेड्यूल. सो दिस इज एन एडवांटेज. यू कैन ऑलवेज प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर आपके पास 1 महीना हैवी पोस्टिंग का है तो अगला महीना लाइट का डेफिनेटली आएगा. तो यू कैन प्री प्लान योर सब्जेक्ट्स. आई हैड माई लाइट पोस्टिंग, PSM वॉज माई पोस्टिंग इन फर्स्ट 2 months, एंड यूजुअली वी हैव अ टेंडेंसी टू जस्ट waste it in developing a momentum, but I made sure that the first 2 months were utilized to the maximum, because then I had 2 months of gynae which was going to be very hectic. But just because I covered enough in first 2 months of light posting, I was not really worried and I did not lose my momentum by the time heavy posting came. Dr. Bhavna, तुमने बताया कि तुमने 2 TNDs join करे थे. One is DAMS and one is Bhatia. So how a student should manage 2 TNDs? How he should complete the whole subject in 3 days? So many students will ask this question, how will I be able to complete the subject in 3 days? On which subject should I focus? One thing you have told is that we have to focus on the subjects that we are weak at. What are the things you would like to tell to the students? कि जो हमारे पास TND का स्केड्यूल रहता है, एक तो उसे पहले से देखना पड़ेगा. आप कौन सा सेंटर ज्वाइन करते हो उसका एक रफ हमारे पास स्केड्यूल होता है. मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक पेपर पे लिटरली टाइमलाइन बनाई थी 12 महीने की, जिसमें हमने हर सब्जेक्ट प्लेस किया था. हाँ, तो उसमें वो रफली फॉलो हुआ, नॉट एग्जैक्टली टू द डेट, क्योंकि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बट वो रफली हमें आइडिया था कि हम क्या कर रहे हैं. क्योंकि क्या होता है, पहले 3 महीने के बाद चीज़ें रिपीट ही होती हैं. अगर आपने पहले 2-3 महीने में 2 TND कर लिए हैं तो एक पॉइंट के बाद ऐसा आएगा कि बायोकेमिस्ट्री फिर से आने लगेगा दूसरे इंस्टीट्यूट में, तो उतना मुश्किल नहीं होता. फर्स्ट 2-3 months आर वेरी डिफ़िकल्ट. तो उसमें प्रैक्टिकली क्या करना होता है आपको कि 2
दो अगर सब्जेक्ट्स चल रहे हैं तो उसमें आपको पहले देखना है कि आपका वीकर सब्जेक्ट कौन सा है, उस पे फोकस करना है। और लाइटर सब्जेक्ट को आप 1 से 2 दिन दे सकते हो, क्योंकि आपके लाइटर सब्जेक्ट या फिर ईजियर सब्जेक्ट मैं बोलूँगी जिसका आपके पास डेफिनेटली एक कंटेंट है, रेडी है, आपको उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। जैसे मान लीजिए एनेस्थीसिया, आपके पास एक अच्छे नोट्स हैं, आपने फाइनल ईयर में किए थे, तो ये मेरे लिए एक ईजी टारगेट वाला है उस हफ्ते का। दूसरा मेरा है फॉर एग्जाम्पल माइक्रोबायोलॉजी, जो किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मुझे आता भी नहीं, तो आई विल फोकस ऑन दैट। और आप एक दिन में 2 चीज़ें पढ़ सकते हो, इससे थोड़ी मोनोटनी भी कम होती है। सिंस आई वॉज डूइंग इंटर्नशिप, तो लाइट पोस्टिंग यानी मैं 2 से 3 बजे फ्री हो जाती, तो मेजर चंक ऑफ द डे आई एम डूइंग माइक्रोबायोलॉजी, एंड बाय द टाइम आई एम टायर्ड या बीच में 2-2.5 घंटे आई एम डूइंग द ईजियर सब्जेक्ट जो मुझे ईजी लगे। तो ये सब बेसिकली तभी समझ आ पाएगा जब आपको पता हो कि आपके ईजी सब्जेक्ट कौन से हैं और आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन से हैं, तो उस पे एनालिसिस। Okay friends, so now we will discuss the last month preparation just before the exam. But before that I would like to thank certain people who helped me through this, because it is a very big thing to be able to get your seat that you have always dreamt of, and it is they will be getting they'll be taking seat, starting their residency as well. So I think some names of your friends. yes sir, I would like to take the names of my friends group. Ayushi, Samyukta, Avni was my study partner. We planned it together how we will do it, the whole plan of 12 months and all. And of course the batchmates, वैष्णवी सर, मुझे मेरी ओबीजी भाई की सीट मोटिवेट कर रही थी। वी हैव टू फाइंड आवर मोटिवेशंस जो सबके पास होती हैं। आपकी ब्रांच, आपकी का कॉलेज, एक एम्स ओनियन के लिए एक एम्स उनका ड्रीम होता है, तो एक तो पहले उसको क्लियर करना ज़रूरी है। इफ़ यू हैव ट्रू मोटिवेशन, मेरे रूम में एक चीज़ लिखी हुई थी, ट्राई। बस आई वॉन्टेड टू कीप माई मैसेज सिंपल। ट्राई मीन्स ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ट्राई वन मोर टाइम। वेरी सिंपल। अगर इट्स अ हैवी डे, यू हैव वेरी लेस टाइम, आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्टॉप द क्लॉक, बट आप ट्राई कर सकते हो। जस्ट ट्राई, डोंट थिंक, डोंट बॉदर सो मच, जस्ट सिट, ओपन द बुक, ट्राई रीडिंग। पढ़ पाए ठीक है, नहीं पढ़ पाए तो देन प्लान बी, प्लान सी, बट ट्राई। तुमने शायद मेरी अभी वीडियो नहीं देखी रिसेंटली, तो वो थी अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर, तो उसमें मैंने एक कविता बोली थी। नहीं याद नहीं सर। उसमें मैंने बोला था कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब याद आ, ठीक है ना। तो आज तुमने वो पॉइंट रिपीट कर दिया भाई, जितना तुमसे होता है तुम उतना करो। जरूरी थोड़ा है कि भाई अगर T&E है तो सारा ही पढ़ना है मुझे, जितना होता है मैनेज करो। जैसे तुमने बोला कि भाई मैं एक मेरे पास एम था, ठीक है, एक मेरा टारगेट था। इंटर्नशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है लोगों की? सर टाइम होती है, और मुझे ऐसा लगता है टाइम से ज़्यादा वो ऊपर से टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं अबाउट डिस्कसिंग इट, क्रिबिंग अबाउट इट, कि अबाउट हैवी पोस्टिंग या जो भी है। अगर हम ये छोटे छोटे टाइम बचा लें, ज़रूरी नहीं कि आपको हर उस टाइम में पढ़ना है, बट आप उसे पॉजिटिवली यूज़ करो तो बेटर है। सिट विद पीपल हु मोटिवेट यू देन सिटिंग विद पीपल। आप अपनी चॉइस क्लियर रखो। हम हर वक्त नहीं पढ़ पाते, बट हम चूज कर सकते हैं हम अपना टाइम कैसे स्पेंड करें। सो इफ आई विल स्पेंड माई टाइम विद पीपल हु मोटिवेट मी, देन आई विल बी यूटिलाइजिंग माई फ्री टाइम मोर। तो बेसिकली यू हैव टू चूज योर टाइम वाइजली, choose your company wisely, because targets are not easy to meet. You'll have to be smart enough to tackle your time. और बाद में मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि मैंने भी इंटर्नशिप करी थी और मेरा इंटर्नशिप ठीक है। इंटर्नशिप में सबसे ज़्यादा जो मेरे साथ प्रॉब्लम रही थी ना, मेरा कोई विजन नहीं था, मेरा कोई टारगेट नहीं था, ठीक है। हम दोनों में डिफरेंस इसलिए, हमारा इंटर्नशिप में सर टारगेट था कि मुझे ऑक्सीजन की सीट निकालनी है, और मेरा कोई टारगेट नहीं था। और दूसरा बिलीव था कि तुम्हारे अंदर जो था कि ट्राई करो, कुछ तो बनेगा। मैं तो सोचता था ड्रॉप ईयर में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सर ट्राई का एक और एग्जांपल ये है कि जो मिड इंटर्नशिप अटेम्प्ट होता है एम्स का मेनली, I will be doing my residency because of my AIMS rank, though I was not targeting it, I was targeting NEET. तो एक इंटर्न्स की टेंडेंसी होती है कि वो नवंबर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है,
शायद मुझे भी लगता था, और मैं थी भी नहीं, मैं आज भी नहीं हूँ। बट द पॉइंट इज कि हमें हर एग्जाम को पूरा जस्टिफाई करना है उसका प्रिपरेशन। जैसे मैं और मेरे आसपास के सब लोग सोचते थे कि हम नवंबर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो हम नॉर्मल पढ़ेंगे, हम जैसे पढ़ रहे हैं हम अपना सिलेबस खत्म करेंगे या रिवाइज करेंगे। मेरा भी यही माइंडसेट चल रहा था। बट 10 days बिफोर आई रेड वन मैसेज, एक हमारे कोचिंग का ही बायो फैकल्टी, उन्होंने बोला कि आप इस एग्जाम के लिए ऐसे जाओ कि आप रैंक 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी पोजीशन में हो, जस्ट डू दिस। सो आई रेड दैट एंड आई एक्चुअली इट क्लिक्ड विद मी, और मैंने बस कुछ नहीं किया। मैंने 10 दिन देखा कि अब बस एम्स की तैयारी है नवंबर की, और मैंने प्रीवियस ईयर की है। और तो ये एक एडेड पॉइंट है कि हर एग्जाम से पहले उसके प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट। 5 साल के प्रीवियस ईयर, तो नवंबर से 10 दिन पहले सिर्फ प्रीवियस ईयर से आप उसके सॉल्यूशन देखने के बजाय आप अपने नोट्स पे जा सकते हो बार बार, कि अगर एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड नोट्स कर सकते हो। बट हर एग्जाम से पहले उसका टारगेटेड पढ़ाई ज़रूरी है। एम्स से पहले एम्स के प्रीवियस ईयर, पीजीआई से पहले पीजीआई के प्रीवियस ईयर, चाहे आप अपनी प्रिपरेशन में कहीं भी हो, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ नहीं तो ये एम्स की एक अच्छी रैंक कॉन्फिडेंस ले आती है फॉर नीट। तो तुमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 days पहले शुरू करे थे? सर 10 to 15 days, यस, एंड ओनली प्रीवियस ईयर, और कुछ नहीं कर रहा था उस लोगों को तुम ये एडवाइस करोगे कि 10 to 15 नहीं, दे शुड स्टार्ट अर्ली, दे शुड स्टार्ट एटलीस्ट 1.5 months बिफोर, और 2 बार करने चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। एक बार करके कुछ नहीं याद रहता है। मेरे को कंप्लीट फोकस करना पड़ा था उसके लिए। आई वाज नॉट इवन प्रिपेयरिंग, बट मेरा एक सडन चेंज ऑफ प्लान था कि नहीं, आई विल गिव अ प्रॉपर अटेम्प्ट। और फिर 10-12 दिन पहले एम्स का प्रीवियस है, बट 10-12 दिन पहले इट शुड बी योर सेकंड अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर श्योर। उसकी डिटेल्ड रीडिंग ऑफ सोल्यूशन, नॉट सुपरफिशियल, स्पेशली जो फ्रेश पेपर्स हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों के पास में कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करें। क्वेश्चन देखते रहे, सारे सॉल्यूशन पढ़े। सर मैंने ऐसे शुरू किया था कि मैं अराउंड 2 पेपर करती थी हर रोज। 2 पेपर डेली? हाँ, 2 पेपर। आप सॉल्यूशन मत काउंट कीजिए उसमें, अटेम्प्ट ऑफ 2 पेपर्स। और उस 2 पेपर में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, मैं सॉल्यूशन चाहे खत्म ना कर पाऊँ एक पेपर का, बट मैं 2 पेपर अटेम्प्ट रोज करती थी, क्योंकि क्वेश्चन का मोमेंटम होना चाहिए अटेम्प्ट का। तो मैंने मान लीजिए कि 2018 नवंबर दिया, तो 2018 में एक दिन किया और 2017 नवंबर कर दिया उस दिन। और सॉल्यूशन स्पेशली जो फ्रेश पेपर्स हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन, चाहे उनके सॉल्यूशन में 1.5 दिन लग जाए। मतलब माय पॉइंट इज कि आपको अटेम्प्ट जरूर करने हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन आप डीले कर सकते हो देखना, बट अटेम्प्ट करते रहो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो आपको सॉल्यूशन बार बार नहीं देखना पड़ता फिर। तो अब मैंने अगर 2018 रिपीट है तो हाँ, काफी के सॉल्यूशन तुमने ऑलरेडी पढ़ ही लिए। हाँ, तो आपको ऐसा नहीं करना कि 2018 का पेपर कर रहे हो, उसका जब तक सॉल्यूशन नहीं खत्म होगा तब तक आप अगला नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो। अटेम्प्ट करते जाओ अपने पेपर, बट जो फ्रेश पेपर है उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन, जितने पुराने होते जा रहे हैं उतने सिर्फ आप अटेम्प्ट काफ़ी हैं, क्योंकि बाय द टाइम बहुत कुछ रिपीट हो गया होगा, तो शायद आपको सब पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े, और कुछ टॉपिक नहीं ज़रूरी होते, वो पुराने होते हैं। बट जो फ्रेश 3-4 पेपर हैं उनकी डिटेल्ड सॉल्यूशन, और बेस्ट इज टू गो बैक टू योर नोट्स while रिवाइजिंग द सॉल्यूशन। बट इट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने यही दिक्कत है कि मैंने बहुत लेट शुरू किया था, इसलिए जो है मैं नोट्स पे नहीं जा पाई। तो अगर जो इंसान टाइम से शुरू करेगा वो नोट्स पे जा पाएगा उन सॉल्यूशन से। तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट अर्ली द प्रीवियस ईयर। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट तुमने बताया कि क्वेश्चंस देख लो अपने सारे, एक टाइम फिक्स कर लो, एक दिन, हाँ, 2 दिन, रूटीन, जितना सॉल्यूशन हो रहा देख लो। जरूरी थोड़ा ना सारे सॉल्यूशन पढ़ने, है ना, कि हम सोचते रहे यार मेरा तो सॉल्यूशन ही नहीं हुआ, ऐसे कैसे होगा। एक बार क्वेश्चन आंसर तो देखो सारे। यही लोगों को मैं बोलता हूँ कि तुम काफी जल्दी स्टार्ट करो, ठीक है। अगर तुमने मेरी वीडियोस देखी होगी लास्ट 3 months की, तो उसमें मैंने लोगों को बोला था जस्ट डू 2 पेपर्स पर वीक, जी, ठीक है, उतना भी काफी है। जुलाई से अगर तुम 2 पेपर करोगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर तुम 12 पेपर तो आराम से अगर तुम दो पेपर करने की कोशिश करोगे, एक पेपर तो कर ही लोगे ना, ठीक है ना। 200 क्वेश्चन ही तो है, हाँ। और क्वेश्चन आंसर देखने में जैसे अगर तुम इंटर्नशिप के साथ ही जब एक दिन में 2 पेपर कर सकते हो,
हाँ हर कोई कर सकता है। सर वही लेट स्टार्ट करने की दिक्कत ये थी कि मुझे 2 पेपर्स पर डे के हिसाब से करना पड़ा, बट अगर कोई टाइम से स्टार्ट करे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। जैसे तुमने बोला ना कि बहुत पहले बोला कि मैंने माइंड बनाया कि मेरे को एम्स का एग्जाम सीरियसली देना है, ठीक है, तो मैं एक कोट लोगों को कहता हूँ, द वर्ल्ड्स टफेस्ट बैटल्स आर वन not by the strongest man on earth, but sooner or later the man who wins is the man who thinks he can. Yes, समझ आया? Belief is important. जो सोचता है कि भी मेरा एम्स हो जाएगा उसका होता है, जो सोचता है कि भी मेरा होगा ही नहीं इस साल तो मेरा होगा ही नहीं, वो पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता, ठीक है। तो सिंपल सा मंत्र है कि तुम पढ़ने की कोशिश करो, डेली पढ़ो, जितना हो रहा है तुम्हारा होगा। सर इंटर्न्स के लिए ये एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि हर रोज़ पढ़ना, कि आपकी हैवीएस्ट पोस्टिंग में भी ठीक है, आई कैन इमेजिन अ वर्स्ट डे फॉर एन इंटर्न की उनकी 24 आवर ड्यूटी में भी आप जो है फिर किसी तरह टाइम निकाल के, मतलब अगर दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर इंटर्न्स कि अब 24 आवर ड्यूटी में वो कैसे पढ़ेंगे, राइट। तो उसमें वो मिड ड्यूटी टाइम निकालें अपने पढ़ने का, बट they will have to study every day from January 1st. There should not be a gap. क्योंकि इंटर्न्स के लिए बहुत easy। 24 आवर ड्यूटी में कैसे पढ़े इंटर्न, थोड़ा बताओ। सर 24 आवर ड्यूटी में, हाँ सर, कैसे पढ़ते थे सर 24 आवर ड्यूटीज में आपको इजी चीज़ें ले जानी होती है अपने पढ़ने के लिए, मतलब आप ऐसी चीज़ें ना ले जाएं जिसमें आप अनकंफर्टेबल हैं पढ़ते वक्त। आप मतलब मुझे ऐसा लगता है जस्ट बिकॉज रिवीजन इज द की, टेक थिंग्स दैट यू हैव रिवाइज सो मेनी टाइम्स दैट इट नीड्स जस्ट वन मोर इजी रिवीजन। आप ऐसी चीज़ लेके जाएं जो आप बहुत आराम से रिवाइज कर पाएंगे। तो वाई टू रिवाइज इट इन योर बेड कंफर्टेबली, जब आपकी एक इजी रिवीजन वाली चीज़ है, उसको आप उस अनकंफर्टेबल जगह में ले जाओ, क्योंकि वो तो वैसे ही आपके लिए कंफर्टेबल है। एक ट्रिक हो गया ना कि भाई जहाँ पे तुम अनकंफर्टेबल हो वहाँ पे कंफर्टेबल सब्जेक्ट लेके चले जाओ, जहाँ पे तुम कंफर्टेबल हो वहाँ पे अनकंफर्टेबल। तो देख रहे हो तुम डॉक्टर भावना कितनी डेडिकेटेड थी कि 24 आवर ड्यूटी में भी तुमने पढ़ाई करी। तो ऐसी डेडिकेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये भी हो सकता था कि भाई पढ़ने के बजाय चलो चाय पी आते हैं, कुछ खा लेते हैं, बट तुमने वो सब नहीं करा। You made some sacrifices. Friends, I will be posting other parts of the videos tomorrow. If you like this video, do share your views in the comment section below, and in the further videos I will be discussing what was her strategy for the last month, what all books did she follow, notes did she follow during the internship and during the MBBS days. So do like my video and share it among your friends. Thank you.